going to study about redox reactions and the concept of reduction, reduction and oxidation. ठीक है? Concept of reduction and oxidation. हाँ, this is part of mole concept, not very different from it. ठीक है? वैसे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है. This is also part of electrochemistry chapter of class 12. ठीक है? But mole concept का भी ये part होता है. So we are going to do it in mole concept. एंड जब वहां पे आएंगे तो इसके किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को सिर्फ हम लोग टच करेंगे. ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस कैन बी divided into two categories depending upon exchange of electrons based on electron transfers during a chemical reaction. The categories are, first one is called non-redox reactions. Redox reactions. The second category is redox reaction. Redox reactions के अंदर में there are two sub-phenomena which takes on simultaneously, that is reduction and oxidation. Oxidation simultaneously. और non-redox में there is no visible exchange of electrons. मैं बताता हूँ. Non-redox के और भी subtypes हो सकते हैं. There are many subtypes such as displacement, ये double displacement reaction, फिर neutralization reaction, acid-base neutralization reaction. They are going to form the non-redox category. ठीक है? और redox category में basically addition reaction जितने भी होते हैं या displacement reaction जितने होते हैं, they are going to form the bedrock of redox reactions. Redox reactions के अंदर सब categories क्या क्या है, पहले definition बता लो, फिर I'll come back to their sub categories. ठीक है? So the first thing is non-redox reactions. In these reactions, the electrons are not visibly
lost or gained during the reaction. Rather, electron equivalent species, that is, ions are replaced by another. ठीक है, तो सारे नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का विजिबल ट्रांजेक्शन नहीं होएगा, नो विजिबल ट्रांजेक्शंस आर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, ठीक है, rather ions are replaced by another ion, one ion is replaced by another ion, ठीक है. The common examples of this type is you have a double displacement reaction, such as ZnCl2 aqueous plus CuSO4 aqueous is going to give us ZnSO aqueous AQ. It is going to give us ZnSO4 aqueous plus CuCl2 aqueous. CuCl2 aqueous. Is it okay? And similarly, other examples could be there also. We can have more examples, such as sodium nitrate aqueous plus maybe ZnCl2 aqueous, giving us NaCl aqueous plus zinc nitrate aqueous. ठीक है, and there can be many more. डबल डिस्प्लेसमेंट के अलावा सेकेंड टाइप जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन reaction. This is again going to be a non-redox type, such as HCl plus NaOH whole twice. Sorry, NaOH. This is going to give us NaCl plus H2O. और भी ले सकते हैं H2SO4 plus CaOH whole twice. This is going to give us CaSO4 plus 2H2O and so on and so forth. These are two broader categories of reactions which is non-redox reaction. ठीक है? These are non-redox reactions. Now let us come to redox reactions. ये नोट कर लिया हम लोगों ने.
Have we noted down? Hello. नोटिंग। Okay. अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हो ना? यस सर। मतलब आप जो क्लास में Yes, लिखाते हो sir. भाई। हाँ, मतलब वो नोट करते हो तुम लोग ना सारी चीजें प्रॉपरली? Ye- ओके। Sir, yes, sir. Sir, and we all मतलब मैं सर वो जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है सर वो भी थोड़ा सा ऐड करके लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, दैट इफ यू आर डूइंग दैट्स ग्रेट। एंड साथ में आप एनसीईआरटी और एचएससी वाली दोनों बुक्स जो है वो साइड बाय साइड पढ़ते जा रहे हो, राइट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. पक्के से पढ़ रहे हो तुम लोग ना? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स वहां पर चैप्टर में दिखे वो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर मेरे से पूछ लो कि कहाँ से रिलेटेड हो सर सकते हैं। फिजिक्स में पैरेलैक्स वो सर अभी तक मतलब यूनिट Sir, parallax method, हाँ सिखा sir. नहीं है। अरे अभी तक नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। एरर्स एंड मेजरमेंट, एरर्स एंड एस्टिमेशंस के अंदर में वो है ना पैरेलैक्स मेथड, Yes, sir. पैरेलैक्स एरर। तो वो मैं Yes, बता sir. रहा हूँ, मैंने बोला तो था कि अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, ठीक है ना? Yes, sir. तो मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी एरर्स खत्म थोड़ी हो गया है। आई हैड जस्ट टेकन अ बेसिक लेक्चर ऑफ इट। अभी दो लेक्चर्स उसमें और हो लगेंगे, 2 लेक्चर्स अभी है आप लोगों का उसमें होना, 3 hours के आराम से, 3 hours each, so 6 hours we are going to invest on that, ठीक है? और हाँ, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि अभी तक जो चीजें पढ़ाई हैं मैंने, उसमें काफी सारे फॉर्मूलेज हमारे पास आए हैं, Yes, sir. राइट? इन फॉर्मूलेज को क्या हम लोगों ने किसी अलग नोटबुक में नोट करके रखा है? No, sir, I have not मतलब मैंने यूज नहीं किया है another notebook, but I have mentioned it in same notebook. लेकिन मैंने ये मतलब उसके लिए एक अलग ये करके रखा है, क्या? अलग टेबल टाइप्स, अलग पेज पे लिखा है सर मैंने स्पेसिफिकली फॉर द फॉर्मूलाज। ओके, मतलब वो बुक के एंड में आपने नोट कर रखा है अलग से? यस सर, बुक के एंड में रखा है सर। ओके फाइन, ठीक है, दैट इज गुड। और पॉसिबल हो तो उसको एक अलग से नोटबुक बना करके कर लो, क्योंकि अभी जो मैंने एक नोट अलग से किया है। हाँ, क्योंकि रीजन मैं बता देता हूँ, देयर आर गोइंग टू बी लाइक मल्टीपल नोटबुक्स जो कि आपके बनने वाले हैं। और ऐसे समझ लो कम से कम तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ द लाइक 2 years केमिस्ट्री के लिए कम से कम 8, मतलब you will have at least 1800 to 2000 pages to read, pages of notes to be read। अब जैसे नोटबुक का तुम साइज पिक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट A4 साइज पेजेस कितने होंगे, दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 2000, ठीक है? हेलो, आई मीन सर 2000 पेजेस ऑफ ओनली नोट्स, मतलब जो आप क्लास में करते हो? हाँ, जो क्लास में करते हैं, जो लिखवाते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 2000 पेजेस अप्रोक्सीमेटली। यू कैन गेट एन आइडिया, मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा अगर ये लग रहा होगा कि सर कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, तो आई जस्ट गो एक एक करके। जैसे मोल कॉन्सेप्ट तो अभी पढ़ा रहा हूँ, 25 पेजेस हुए हैं। एंड अराउंड जैसे ये पिछले साल का लेक्चर्स देखोगे तो ये 55 पेजेस तक गया है। तो अभी रेडॉक्स चालू कर रहा हूँ, तो रेडॉक्स इज गोइंग टू गो टू लाइक 6-7 पेजेस जाएगा। एंड देन उसके बाद टाइट्रेशन चालू करूंगा तो वो जाएगा, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग 55 नहीं तो 45 तक तो जाएगा। इसमें रिपीटेशन या शुरू वाले थोड़े ज्यादा बड़े बड़े हैं, 45 तक जाएगा। एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर विल कम, ये सारे छोटे छोटे लिखे हुए हैं, 51 पेजेस हैं। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद द नेक्स्ट थिंग इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, 34 पेजेस। देन यू हैव केमिकल बॉन्डिंग। Chemical bonding will be of it's going to be too huge chapter. So this is going to be a very big chapter, I mean it is a big chapter, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं। So this is going to be around 80 to 100 pages,
120 नहीं होगा बट 100 पेजेस तो आराम से रहेंगे इसमें। केमिकल बॉन्डिंग के बाद यू विल कम टू गैसियस स्टेट, gaseous state, that is going to be again 50 pages. Gases के बाद thermodynamics, that will again be of 50 to 60 pages. इसके बाद equilibrium आता है, equilibrium is again going to be 70 pages का. Chemical is going to be smaller, 14-15 pages. Then ionic equilibrium, that is going to be around 50 pages. तो दोनों equilibrium मिला के 60 pages के आसपास जाता है. फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, दैट इज गोइंग टू बी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह का भी है, वो दूसरे वाले में एक्चुअली मेरा सिस्टम करप्ट हो गया था, दैट इज सेव्ड समवेयर एल्स, वो इसमें इंपोर्ट नहीं किया है. वो अगेन 40 to 45 पेजेस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है. एंड सॉलिड स्टेट होता है, दैट इज स्लाइटली लेस, वो 40 के अराउंड 35 to 40 के बीच में आएगा. Solutions again 35 to 40 pages. Surface chemistry around 20 pages. तो ये हमारे physical का portion हुआ. And then comes organic chemistry. Organic chemistry में nomenclature will go for around 20 pages, 25 pages. GOC1 40 pages. GOC2 will be 30 pages. So GOC total 70 pages. Then will be isomerism 26 pages. Isomerism के बाद फिर reaction mechanism आएगा, that is 58 pages. And फिर हमारी बाकी की organic chemistry आएगी, that is hydrocarbon 20 page. ये alkane हो गया, alkene हो गया, alkyne हो गया, और alkene काफी बड़ा होता है 43 pages, alkyne relatively छोटा है 12 pages. Then alkyl halide रिलेटिवली छोटा है. एक्चुअली अल्काइल हैलाइड की काफी सारी चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं पढ़ा दूंगा. देन अल्कोहल्स एंड ईथर्स अगेन 35 पेजेस, followed by it will be carbonyl compounds. This is again going to be a large chapter. Carbonyl compounds somewhere like 50 I believe. Aromatic compounds, ये भी कुछ उसी तरह का चैप्टर है. So this is what I'm going to deliver to you. There is going to be lots and lots of informations. हमें continuously एक चीज तो है कि रिवाइज करते रहना है, ठीक है, छोड़नी चीजों को नहीं है. एंड साथ में जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हर लेक्चर में कुछ ना कुछ समरी चीज आएगी जो आप खुद से या तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर मैं एक काम करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करके एक समरी पॉइंट बोलूंगा कि आप बताओ मुझे व्हाट इज द समरी पॉइंट ऑफ लास्ट लेक्चर, क्या क्या चीजें आपने सीखी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. And that should be mentioned in, that must be mentioned in your that particular notebook. Am I making sense? वो Yes, sir. आपके उस फॉर्मूला नोटबुक के अंदर में जानी चाहिए. That is going to be kind of maybe 40 to 60 pages on a normal notebook for chemistry, which is going to be your last रिवीजन बाइट, या फिर ऐसे बोलो कि वो ऐसा होएगा जिससे आपको हर चैप्टर के बारे में कितना इन डेप्थ नॉलेज है. जैसे उसके पेजेस को पलटोगे, इफ यू आर एबल टू जस्ट रिकैप कि हाउ दैट फॉर्मूला हैज बीन डेराइव्ड जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, दैट मीन्स यू आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई दैट फॉर्मूला. ठीक है, वो फॉर्मूला याद है आपको या वो कॉन्सेप्ट याद है आपको, आप किसी भी टाइम पे उसको अप्लाई कर सकते हो. सो ये नोटबुक आपका एक काइंड ऑफ योर मेंटल इंडेक्सिंग होगा कि ओके आई नो दीज थिंग्स. फुल्ली पार्शियली कितना जानते हो वो एग्जैक्टली आप इंडेक्स कर सकते हो उसके हिसाब से. इज इट ओके? हेलो सर. हाँ बोलो. सर मैंने ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग बुक बनाई है. हाँ वो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग बुक इज फाइन. मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूलेज के लिए भी आप एक एक बुक बना के रखो.
केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तीनों के लिए। बात समझ में आ रही है? और हर लेक्चर में जो चीजें, एंड इसको लेक्चर वाइज ही आपको अपडेट करना है, हर लेक्चर में अपडेट करना है, हर लेक्चर के बाद आपको अपडेट करना है। लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, रिवाइज करने के बाद, क्या पढ़ाया गया वो रिवाइज करने के बाद, देन यू विल मेंशन दोज थिंग्स इनटू दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो की फॉर्मूलेज हैं विद देयर नोटेशंस, वो आप अपने इस फॉर्मूला बुक के अंदर में डाल के रख दोगे। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ, एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ नहीं लिखोगे, ठीक है? ओनली फॉर्मूलेज विद देयर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब कहाँ पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है वो लिखना है, तो वो लिख करके रखोगे। एम आई मेकिंग सेंस? और ये अभी से ही हम लोग को करना है, तो अभी से करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर अस। अदरवाइज अगर हम इसको पोस्टपोन करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं कि अच्छा कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तो स्लोली एंड स्लोली हमारा, मतलब आप लोगों को पता होगा, देख भी रहे होगे कि धीरे धीरे आप लोग के होमवर्क्स बढ़ रहे हैं। एक पहले वीक के कंपैरिजन में दूसरे वीक में थोड़ा सा मिला, उसके कंपैरिजन में थोड़ा और बढ़ा है, थर्ड फोर्थ तक आते आते यू हैव सब्सटेंशियल, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज, कम नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज। आप जितना कर लोगे उससे और थोड़ा ज्यादा हम देंगे, ठीक है? सो दैट आई कैन स्ट्रेच योर पोटेंशियल। मैं बढ़ाते जाऊंगा, मतलब वो बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम जितने अच्छे हो जाओगे उससे और अच्छे होने की गुंजाइश रहेगी, एंड आई विल प्रोपेल यू टू बी दैट और बिकम मच बेटर देन व्हाट यू आर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ऐसे में मैं लैक्सिटी किसी भी स्टेप पे नहीं चाहूंगा, आप किसी भी तरीके से लेथार्जिक ना फील करें, कहीं पर भी आप किसी इस तरह की छोटी छोटी चीजों की वजह से ऐसा ना हो कि यू टम्बल। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। वेरी गुड। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपके पास रहेगा और इसको कभी कोई एक्सेस नहीं करेगा। आप लोग का एक एक्सरसाइज ये रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, एवरी संडे, ठीक है? फॉर्मूला बुक के जैसे अभी आज इस संडे को जितने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे अपडेट करोगे, देयर विल बी सम 8 और 10 ऑड पेजेस जो कि हो जाएंगे सबकी नोटबुक में, ठीक है? फिजिक्स में कुछ आ जाएगा, कुछ बेसिक मैथ्स में आ जाएगा, और बेसिक मैथ्स वाला जो है वो मैथमेटिक्स के बुक में ही नोट कर लोगे। यू डोंट नीड टू पुट इट एवरीवेयर, और यू कैन पुट इट इन लाइक मैथ्स वाले बुक में रख लोगे उस चीज को, ठीक है? वो चाहे मैंने पढ़ाया हो, आनंद सर ने पढ़ाया हो, या चंदन सर ने पढ़ाया हो, यू कैन पुट दैट एवरीथिंग इनटू मैथमेटिक्स का बुक। नाउ मुझे इस संडे को आपने जो अभी तक यानी सैटरडे तक पढ़ाई हुई जो भी कंटेंट रहेगी उसके बेसिस पर डेवलप्ड आपका जो भी ये फॉर्मूला बुक रहेगा, ठीक है? उसके सारे पेजेस के चाहिए होंगे फोटोज, मेरे मेल बॉक्स में बिना, व्हाट्सएप बॉक्स में बिना बोले आ जाना चाहिए। ये आप लोग होमवर्क नोट कर लो, संडे के दिन मुझे चाहिए। इज इट ओके? यस सर। वेल अंडरस्टूड बाय सर एवरीवन? मैथ या ऑल सब्जेक्ट? क्या क्या? सर सॉरी? ऑल सब्जेक्ट, हाँ, ऑल ऑल सर मैथ। सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स। मैं सारे सब्जेक्ट्स के नोट, ये फॉर्मूला बुक आपकी चेक करूंगा, ठीक है? ये बिना मेरे बोले संडे के दिन आपका आ जाना चाहिए मैसेज। एंड गोइंग फॉरवर्ड इस संडे के बाद से अगले संडे से, नेक्स्ट संडे से आपने एडिटिव क्या ऐड किया, ठीक है? जैसे उस पूरे वीक में आपने 2 पेजेस मान लीजिए ऐड किए, तो आई वांट इन माय मेल बॉक्स, व्हाट्सएप बॉक्स, दोज I mean images of those 2 extra pages which you have written during that entire period of a week, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए। क्लियर है?
यानी आगे के संडेज को आपको जो एडिटिव उस वीक में आपने इस बुक के अंदर ऐड किया, दैट शुड कम टू मी। इस संडे को जितना पूरा करोगे इंक्लूडिंग पीछे का वो सारा, सो दैट आई मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज देयर इन योर फॉर्मूला बुक। ठीक है, ओके सर। क्लियर है इंस्ट्रक्शन सारे लोगों और को? एक क्वेश्चन, यस सर। हाँ बोलिए। जो ये कैलकुलस है वो किस में डालना है? बेसिक मैथ्स की सारी चीजें मैथमेटिक्स वाले बुक में डालोगे। ओके सर। ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज redox reactions. सर योर अरे बोर्ड इज नॉट विजिबल। कोई बोर्ड विजिबल नहीं था तुम लोगों को, तो तुम लोगों ने, मैं लिखे जा रहा था। ओके ठीक है, चलेगा। संडेज एंड संडेज, इंस्ट्रक्शन तो क्लियर है ना, या कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। नो डाउट। ओके फाइन। redox reactions, those chemical reactions in which there is visible transfer of electrons from one atom plus species to another atom plus species during the reaction known as chemical reaction, are known as redox reactions. ठीक है, अब ये विजिबिलिटी कैसे आती है दैट वी विल डिस्कस। अभी यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल्स में डिस्कस करता हूँ। Examples of this type of reaction or redox reaction is, first is combination reaction. Combination reaction. ठीक है, such as sodium solid plus Cl2 gas. This gives NaCl solid. ठीक है, this is a combination reaction. Sodium solid plus oxygen gas gives us Na2O. This is again a combination reaction. This also qualifies as, ये combining element अगर ऑक्सीजन होता है, ऐसे combination reaction को हम लोग combustion reaction भी बोलते हैं, right? Combustion reaction. ठीक है, combustion reaction में क्या होता है, combining element जो होता है, एक element that has to be oxygen.
or burning in presence of excess amount of oxygen is combustion, right? Yes, burning of anything is combustion. Mg solid plus O2 gas gives us 2 MgO solid. Magnesium ribbon की burning. So anything जहाँ पे oxygen is combining with either a single atom or anything is being burnt, like coal burn किया जा रहा है, कार्बन को burn किया जा रहा है, मीथेन को burn किया जा रहा है, सोडियम हाइड्राइड को भी बर्न किया जा सकता है. कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन या रिएक्ट कर रहा है उस चीज को कंबशन बोलते हैं. ठीक है ना. कंबशन रिएक्शन क्या होता है? एनीथिंग बर्निंग इन sufficient supply of food. ठीक है. The combustion reactions are a subset of combination reactions. हाँ, they are subset of combination reactions, no doubt about it. ठीक है ना. They are subset of combination reactions. ठीक है. यहां पर कंबाइनिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइनिंग एलिमेंट एक जो रहेगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑक्सीजन, देन इट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा होता है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन. ठीक है. डिकम्पोजिशन भी इट्स गोइंग टू बी जैसे Na2O, इसको अगर हम हीट करेंगे दिस मे ब्रेक इनटू सोडियम 4 plus O2 gas. This is decomposition reaction. It is difficult to happen, but can be done. Can be done. ठीक है. या इसके केस में अगर नहीं हो रहा है तो किसी और चीज के केस में कर लेंगे. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहां पे हमको एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट्स मिल जाए, एलिमेंटल फॉर्म मिल जाए. ठीक है. या फिर नहीं भी एलिमेंट मिल रहा है तब भी कोई बात नहीं है. देयर आर मेनी सच रिएक्शंस. जैसे सोडियम का ही नाइट्रेट फॉर्म अगर लेंगे ना, सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट NaNO2 प्लस O2. ठीक है. इस तरह का ब्रेकिंग डाउन होएगा. बाकी चीजों का सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होंगे दे आर गोइंग टू गिव आउट समथिंग, एंड वो गिव आउट समथिंग करने के टाइम पर रेडॉक्स होएगा ही होएगा. अब हेलो, are you guys saying anything? Sir, हाँ. sir, the state of every compound or element, how is it determined? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ अभी. अभी सिर्फ रिएक्शंस के टर्म्स में सोचो. I want you to understand that these reactions, these set of reactions are categorized or comply to the definition of redox. अब ये सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियर तब होंगी जब मैं एक्चुअली आपको डिस्कस करूंगा कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे. ठीक है. क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिस यही होता है कि यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है. ठीक है. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. In these reactions, a reduction, that is gain of electron by some species and oxidation, that is loss
loss of electron by some other species has to mandatorily really take place. ठीक है, सो यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दो चीजें होंगी जो कि डेफिनेटली होंगी। अब इसको देख, हमको पता कैसे चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? द विजिबल थिंग इज if you are having gain of electrons, it is going to be reduction. If it is going to be loss of electron, it is going to be oxidation. ठीक है, सर बट हम लोग काउंट कैसे करेंगे या देखेंगे कैसे कि कहाँ पर लॉस हो रहा है, कहाँ पर गेन हो रहा है? हाँ बोलो। सर यहाँ स्पीशीज मतलब एटम्स या फिर कुछ और भी हो सकता है? एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स कई एक फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकते हैं, आयनिक फॉर्म में हो सकते हैं, रेडिकल फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, लिगेंड के फॉर्म में हो सकते हैं। लिगेंड क्या होता है बताया है क्या मैंने? यू ओनली गिव द मतलब स्पीशीज में आपने कैटेगराइजेशन दिया था लिगेंड, लेकिन मतलब वो होता क्या है नहीं बताया था, राइट? और कैल्शियम सल्फेट पता है हम लोगों को, ये क्या होता है? पीओपी। ये पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? CaSO4 half कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट। और फिर से पानी डालते हैं तो ये बैक एंड फोर्थ करते रहता है, ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं तो ये वाला भी उड़ता है, बट ये वाला उड़ने का टेंडेंसी जो होता है दैट इज एट वेरी हाई हीटिंग। मतलब ये काम 100-200 डिग्री सेल्सियस तक के हो रहा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। ये वाली चीज 760 डिग्री सेल्सियस पर होती है या इवन हायर देन दैट। सर उससे फिर क्या बनता है? इसके बाद सिंपल CaSO4 बनता है एंड दिस इज कॉल्ड डेड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? इसके बाद ये वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता या इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नाउ द रीजन फॉर इट इज, ये जो H2O आधा H2O है, एक्चुअली आधा तो रहता नहीं है, इट इज लाइक दिस, ठीक है, 2 CaSO4 पर एक H2O। ये एक्चुअली इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैप्ड H2O होता है। ठीक है, CaSO4 जो होते हैं वो एक्चुअली CaSO4.H2O वो कुछ इस तरह का एंटिटी होता है। ये एक दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं टू मेक दिस सॉलिड CaSO4, और ये पूरी चीज एक सिंगल एंटिटी होती है। अब इसके अलावा भी जो ये बाहर के H2O होते हैं, जैसे अगर 2 मॉलिक्यूल्स पर देखोगे तो ये 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, तो बाकी के 3 H2O जो होते हैं वो भी इनके साथ अटैच्ड या अट्रैक्टेड होते हैं, बट वो वाया अ मोर वीकर बॉन्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं, और वो इस यूनिट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, इस यूनिट का पार्ट नहीं होता है। नाउ यहां पर राइट, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये भी है, बट बाकी के 3 जो होते हैं वो और वीकर होते हैं. एनीवे, these entire 3-4 molecules of water are termed as ligands in this case. ठीक है, they are extra species which are there to create a linking between the actual molecules or the principal molecules. ठीक है, इसका और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे AgCl जो होता है ना, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम अमोनिया को पास करते हैं, अमोनिया को, इट फॉर्म्स अमोनिएटेड सिल्वर क्लोराइड, अमोनिएटेड सिल्वर क्लोराइड, NH3 whole twice and Cl. This is ammoniated silver क्लोराइड. ठीक है, यस, यहाँ पर 10H2O. तो यहाँ पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, एक्चुअली ये यही लिगेंड है. ठीक है, यहाँ पर दिस NH3 इज लिगेंड. इज इट ओके? सर मुझे नहीं क्या हुआ? ये मेरे को समझ नहीं रहा. नहीं, इसमें समझना क्या है, मतलब क्या नहीं समझा ये बताओ मुझे. मैं बोल रहा हूँ कि ये डॉट वगैरह जो लिख करके आती है चीजें ना, या फिर इस तरह का बड़ा फॉर्मूला हुआ जिसमें कहीं पर इस तरह के ब्रैकेट में किसी कंपाउंड को डाला हुआ है. ठीक है, these compounds are called complex compounds. This is a complex compound, this is also a complex compound. And ये complex compound के अंदर में मेटल एटम के साथ ज्वाइंट ये सब्सिडियरी जो मॉलिक्यूल होता है, इसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं. ठीक है, ये सेपरेटली आपको जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, या फिर एक चैप्टर आता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. देयर इज अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इनके बारे में आपको अलग से एक चैप्टर पढ़ना है. ठीक है, अभी के लिए आपको क्या समझना है, इस तरह की एक्स्ट्रा स्पीसीज जो आ रही हैं हमारे मॉलिक्यूल में होती हैं, रिप्रेजेंटेड जनरली बाय डॉट्स या बाय दीज काइंड ऑफ ब्रैकेट्स. और ब्रैकेट के अंदर में जो चीज रहेगी ना, वो विजिबली ये आपको दिखेगा या पता चलेगा कि दैट इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, सम स्मॉलर मॉलिक्यूल, but it is going to be a complete molecule. Ion नहीं रहेगा, it is not going to be something like this. NH4 plus is an ion, but NH3 is a proper molecule, stable molecule. ये stable molecule के form में ही यहाँ पे रहता है. So NH3 in this circumstance is what? It's a ligand. ठीक है, H2O यहाँ पर क्या है? Ligand है. बात समझ में आ रही है? अमोनियम क्लोराइड में यहां पर भी अमोनिया है, बट यहां पर अमोनिया NH4 प्लस के फॉर्म में है. ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में है, यहां पर ये आयन है, ये लिगेंड नहीं है, यहां पर ये लिगेंड है. ठीक है, इट इज जस्ट अ नोटेशनल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब ये नोटेशनल अंडरस्टैंडिंग हमने क्यों डेवलप करी? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ NH3 over here and over here are different. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज, the easiness at which I can get NH3 extracted from here and from here are of different level or of different scale. अमोनियम कंपाउंड्स में से NH3 को मैं ज्यादा इजीली पुल आउट कर सकता हूं, यहां से अगर पुल आउट करना है तो आई हैव टू फाइट अ लॉट. इसीलिए इनको अलग से एक कैटेगराइजेशन दिया गया लिगेंड्स का. Am I making some sense? Yes sir.
अथर्व? यस सर। ओके, सारे लोगों को थोड़ी सी समझ में आ गई लिगेंड्स के बारे में? अभी सिर्फ उतना ही समझना, उससे ज्यादा नहीं समझना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझेंगे हम। यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सम स्पीसीज एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सम स्पीसीज, दैट शुड मैंडेटरली हैपन. इफ दैट इज हैपनिंग, वी आर गोइंग टू कॉल इट redox reaction. Now, how are we going to judge that there is a gain of electron or loss of electron happening from some or the other species? That is done by sort of new thing which we uh, you can say scripted, that is called oxidation state. Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? It is a number which keeps accounting of number of electrons present in an atom with respect to its neutral state. ठीक है, न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या हुआ? When number of protons and number of electrons are equal. ठीक है, number of proton equal to number of electron. इस स्टेट के कंपैरिजन में what is the number of electrons that is present? How is that related? For example, sodium has 11 electrons and 11 protons. ठीक है, each of them equal to 11. सोडियम प्लस में क्या हो जाता है? You have 10 electrons and 11 protons. Therefore, it is having a positive charge. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज +1. ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज 1 लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. If number of electrons are going to be 1 higher than number of electrons, then oxidation state is going to be -1. So we are going to write it down. So what is WRT? With respect to So if one electron is getting added, so it would be reduction state, no? हाँ, it will be reduction state. ठीक है. Sir, what have you written? It is a number which keeps के बाद क्या लिखा है? It's First line. accounting of number of electrons present in an atom with respect to its neutral state. ठीक है. If n electrons are in excess to protons present in chemical species, its oxidation
state is stated to be minus n. Whereas if n electrons are deficient or n electrons less compared to protons present in chemical species, oxidation state is stated to be plus n. ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई? Yes, sir. एंड दूसरी चीज होती है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब होता है इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, this is also denoted as delta OS. Now, if delta OS is positive, we call it to be oxidation. ठीक है, और अगर delta OS negative रहा तो we call it to be reduction. Is it okay? Sir, initial oxidation state हमेशा phase 0 रहेगा ना? जरूरी नहीं है. अगर फ्री स्टेट के बदले किसी और स्टेट में हम रहते हैं तो हमारा इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट मे नॉट बी जीरो. विल सी वेरियस रिएक्शंस जहां पर मतलब पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है ये एनालाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी आई कैन गिव मेनी एग्जाम्पल्स. जैसे अभी तुम लोगों को कुछ कंफ्यूज करने के लिए मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें करेंगे. तो दोनों टाइप के एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ. पहले एक रिएक्शन लिखता हूँ, एक या दो तीन रिएक्शन मैं लिखता हूँ. सपोज दिस रिएक्शन क्वेश्चन देखो, एक जो तुम एग्जांपल मांग रहे हो ना उसके लिए मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ. H2SO3 plus O2 is going to give me H2SO4. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो छोटा रहेगा
और दूसरे वाले में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा रहेगा, और इन दोनों में ही किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना सल्फर का, वो जीरो नहीं रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का यहाँ पर जीरो रहेगा, जो कि 0 से -2 पर चला जाएगा, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 से +6 पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड सल्फर इज डेफिनेटली नॉट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ रही है? सो देयर वेयर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन, जैसे सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर से हीट करके बन रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली 0 से +4 पर जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होता है, वी आर गोइंग टू सी इट इन सम टाइम। बात समझ में आ रही है? इट्स जस्ट अ ग्लिम्स या इट्स जस्ट एन आइडिया कि हम ऑक्सीडेशन कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में प्राइमरी चीज क्या होती है? If change in oxidation state is positive, then we call it oxidation. If change in oxidation state is negative, we call reduction. और change in oxidation state positive जब रहेगा, तो जितना पॉजिटिव रहेगा, जैसे मान लो +m होता है, that simply means m electrons has been lost by some species. ठीक है, और यहां पर अगर मान लो -n हो रहा है, निगेटिव -n हो रहा है चेंज, तो रिडक्शन में क्या होगा? n electrons has been gained by some species. We don't know the species. जनरल है तो कैसे पता रहेगा? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Is it clear? Will you explain again, Sala? हाँ, definitely. See, I'm just saying, if oxidation state is positive or change in oxidation state is positive, that is +m. Oxidation state is positive. Suppose positive कितना है? +m हो रहा है change in oxidation state. जैसे +3 से +5 पर जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, या -3 से, इनिशियल -3 था, यहां से -1 जा रहा है। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन लॉस्ट बाय, जिस स्पीसीज का -3 से -1 हो रहा है, वो स्पीसीज क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया उसने। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। दूसरी स्पीसीज जो है उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, दैट इज मे बी इट कैन हैपन फ्रॉम -1 to -4 हो सकता है। हाँ बोलो ना। सर अगर प्लस नहीं सर, अभी भी डाउट है? सर नहीं क्लियर होगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन अगर स्टेट -1 से -4 पर चेंज कर रहा है, तो मेरा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? -3 रहेगा। -4 माइनस ऑफ -1 दैट इज -3। ये नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? कि these many electrons has been gained by the species जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नेगेटिव रह रहा है। ठीक है ना? and that means that species has got reduced. Clear? Yes, sir. Okay. अब नेक्स्ट चीज हमारे सामने जो होता है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में है क्या बेसिक, इसके बारे में और भी डिस्कस करूंगा। मुझे अभी डिस्कस जो करना है वो करना है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, तो पहले हमको ये पता चले कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी
एटम का या स्पीसीज का, उसके बेसिस पर ही हमको ये पता चल सकता है ना कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द rules for assigning oxidation state in chemical species. ठीक है सर, एक डाउट मुझे उसमें। बोलो ना। अगर कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फिर उसके ऊपर एक माइनस साइन लगेगा, तो हाँ। फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर, तो फिर अगर फाइनली हमें माइनस मतलब नेगेटिव में मिलेगा तो फिर वो तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए क्योंकि वो गेन कर रहा है। नहीं समझा, मुझे फिर से बोलो। कोई चीज है मतलब ए, ठीक है? हाँ, इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नेगेटिव है तो फिर वो ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया है -m, ठीक है? फिर हाँ सर, अगर ये माइनस है तो फिर ये मतलब इधर ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना। नहीं, ये स्टेट जो है, ये -m का स्टेट, इसका कहां से आया है? कहां से आया मतलब किस जगह से आया है? अगर हम लोग को ये स्टेट ए किसी m-4 स्टेट से -m-4 स्टेट, जैसे ए का अभी स्टेट मान लो -2 है, ठीक है? और ये a-4 से आ रहा है बन करके, ठीक है? तो यहां से यहां आने के लिए क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है? माइनस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रुक जाओ, बस खत्म कर। लेकिन अगर ये स्टेट हम अचीव कर रहे हैं मान लो a+1 से, तो यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, देन आई एम गोइंग टू कम टू दिस स्टेट, दैट मींस इट इज रिडक्शन, ठीक है? सो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? हाँ बोलो। सर वही बोल रहा हूँ कि आपने ऊपर जो अभी दिया था कि अगर डेल्टा ओएस अगर नेगेटिव है तो फिर आपने तो रिडक्शन दिखा, इसलिए वो डाउट था। हाँ तो देखो ना, यहाँ पर डेल्टा ओएस करो कैलकुलेट, फाइनल स्टेट ये है, तो -2 -1 दैट इज -3, निगेटिव आया तो रिडक्शन। यहाँ से जब करोगे तो डेल्टा ओएस क्या होगा? फाइनल क्या है? -2 है, माइनस ऑफ -4, दिस विल बिकम +2, ऑक्सीडेशन। हेलो सर। हाँ बोलो। ओके। इफ मतलब एलिमेंट के ऊपर जनरली जो जैसे उधर आपने -2, लेकिन उधर अगर ऊपर के तरफ A2 माइनस लिया हुआ है अगर कोई भी मतलब क्वेश्चन में, वो सारे स्पेसिफिक्स में अभी मत जाओ, वो सारे स्पेसिफिक्स में कवर करूंगा, वो सारे सिनारियोस कवर होंगे, ठीक है? ओके सर। जेनरिक डाउट कुछ है, कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो बोलो। अभी रूल्स के अंदर में मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? देयर आर 10 रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन केमिकल स्पीसीज, वी आर गोइंग टू डू दैट। वंस वी आर डन विद दैट, फिर आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है? हेलो हेलो